Welcome to this lecture on Logic Gates by Dr. Rajesh Singh. So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. So last time what we were doing? Switching circuits. Yes, we defined switching circuit. So what was the definition of switching circuit? Switching circuit is just a mathematical model. Yes, it is a Boolean polynomial, right? Representing the electrical circuit. Yes, it is a mathematical model for representing any electrical circuit using our Boolean polynomial. So today we are going to do another type of switches which are called gates. These are special. These are special switches because these are logical switches. Okay. So definition, what is this whiteboard visible to everyone? Yes, sir. Okay. Yes. So gates are basically electronic devices. Okay. So it is basically electronic device or blocks or switches. These are special types of switches और जो हमने switches करें उसी का special type है because they are of more importance now क्योंकि आजकल ये ज़्यादा use होते हैं computer systems में which are used in the logical design of digital building. Design of digital building of building components of electronic computers. Okay, so gates are basically electronic blocks or switches that are used in the logical design of digital building components of electronic computers. ठीक है? Is it clear? So there are different types of gates. So let us just introduce them. तुमने पढ़ा होगा ये सुना होगा कहीं पे गेट्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? Sir, there are 5 type of gate: and, or, nor, Yes. not, and none. Yes. So generally 4 होते हैं फिर उसके combination से we can make more gates. ठीक है? NOR वाला जो है that is combination of not and or. So basically we have 4 types of gates. Okay. So in general we have 4 types of gates which are. So let me just give you the value. So these are the 4 types of gates. So first is identity gate, which fixes the element. जो भी तुम input डाल रहे हो, you are getting the same as output, right? Identity gate means whatever you are putting the input, you are getting same as the output. Then second you have NOT gate, or it is also called inverter. So what it does is it gives the complement of the input. So अगर input A डाल रहे हो, then you will get A complement. Then you have AND component, and AND gate is used when there are more than where there are 2 or more variables. So जब 2-3 variables, 2-3 different types of input आता है, तो AND gate क्या करता है? It takes the cap of all the inputs. It takes the minimum, so infimum of all the inputs. It takes the cap of all the inputs. And OR gate क्या करता है? It takes cup of all the inputs. जितने भी input डालोगे, you will get the cup of OR. So OR represents cup, and represents cap, not represents complement, and identity is the same. ठीक है? So not gate में क्या difference है इससे और इसमें? So there is one dot here. Okay.
यहाँ पे हम डॉट पुट कर देते हैं जब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें आइडेंटिटी गेट से डिफरेंट करने के लिए वी पुट अ डॉट एट दिस पॉइंट. डॉट मींस इट इज गिविंग अस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट वेरिएबल. और एंड गेट भी यही गेट है, आइडेंटिटी गेट की तरह ही है, बस इसमें क्या है, देयर आर एटलीस्ट 2 और मोर वेरिएबल्स. देयर आर एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स इन दिस, 2 इनपुट वेरिएबल्स. एंड OR गेट कैसे काम करता है? OR गेट इज लाइक दिस, इट इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली लाइक दिस कर्व्ड. ठीक है, is it fine? Yes. अब अगर हमें कॉम्बिनेशन करना हो, जैसे अगर हमें क्या नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन करना हो तो क्या करेंगे हम? ओके जैसे अगर हमें ये वाला, so suppose we want to represent, so suppose we want to represent the function, the polynomial p x1 x2 equal to x1 x2 complement. Then how to do this using gates? How to represent this using gates? कैसे करोगे? So this is represented by like this. ठीक है, so हमें and और उसको mix करना होगा इसके component को. So what we do is we take this, ठीक है, 2 inputs and then ठीक है, so this is your this and then this. So what you will do is, so ये AND gate, so this is a symbol for AND gate, right? So this is your input variable A1, this is your input variable A2. So this will give you A1 A2, right? So this will give you A1 A2, right? Yes. So this is your Yes. input. आप क्या करोगे? Because you want complement of this, so you will put complement का मतलब है कि this. ठीक है? Is it fine? So this will give you the complement of this. ठीक है, सो अगर 3-4 का कॉम्प्लीमेंट लेना होगा तो अगर आउटपुट जहां पे भी लेना है, अगर वहां पे ये लगा देते हो डॉट, मींस दैट देन यू विल गेट कॉम्प्लीमेंट एज, देन यू विल गेट आउटपुट एज अ कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सो लेट मी गिव यू, ठीक है, इज इट फाइन? Yes, sir. So notation for NOT gate with multiple inputs. ठीक है, अभी एक इनपुट में तो हमने कर लिया, अगर मल्टीपल इनपुट्स हैं तो क्या करेंगे हम? So that is this. Okay, is it fine? So this dot is means कि we are getting, जो भी यहाँ पे लिया तो AND गेट, और फिर इसका क्योंकि डॉट लग गया तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. अब यहाँ पे डॉट का मतलब है कि इनपुट को ही कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहे हैं हम. सो यू आर गेटिंग A1 A2 डैश. ठीक है, यहाँ पे अवर इनपुट इज कमिंग आउट टू बी कॉम्प्लीमेंट. सो हमें अगर एक किसी को बीच में कॉम्प्लीमेंट लेना है, किसी खाली वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो हम उसको पहले ही इनपुट के पॉइंट पे ही वी विल पुट अ डॉट. ठीक है, अगर हमें टोटल कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वी विल पुट कॉम्प्लीमेंट एट द डॉट एट द आउटपुट लोकेशन. ठीक है, इज इट फाइन? Yes, sir. So what does this represents? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ, ये वाला? So this is your A1, this is your A2, this is your A3. So what you will get here? Yes. A1 dash, A2, A3 का whole dash. Yes. And this whole dash. ठीक है? Because
See, you have a input variable. So this is your input variable, right? So this implies input as complement, okay? And this implies output as a complement, and this is symbol for AND. This block is symbol for AND, ठीक है? So इसलिए input का, so इन तीनों का AND हो जाएगा, and then you get a complement. Fine. Is it clear, everyone? Yes, sir. Okay, now we have another important gates. ये जो combination से बनते हैं. Okay, so these are very important क्योंकि इनके combination से we make other gates. ठीक है? So let me just give you. These are important gates. So important gates obtained from combinations of the basic gates. ठीक है? उनके combination से ये आए gates. These are all gates. So subjection gate, this is also called. Okay. This is subjection gate. So यहाँ पे क्या हो रहा है? A1 complement plus A2. So subjunction gate, and then you have this NOR gate. ठीक है? So this is OR plus NOT का complement. Oh, combination. OR plus NOT, so NOR gate. ठीक है? So this is represented by this. So this represents OR, right? So अगर इसका किसी डॉट अगर यहाँ पे लगा दिया तो you get complement of OR. अगर यहाँ इनपुट की पॉइंट पे लगा दिया तो you get complement of input. ठीक है? और this is your AND gate और उसका ये so NAND gate हो गया. So this one is NAND gate जो हमने ऊपर डिफाइन करा है. ठीक है? So this one is NAND gate, then this one is NOR gate, this one is subjection gate. ठीक है? And this is also called Pierce operation. Pierce operation, and this is called Sheffer operation, I think. Sheffer operation. Fine. Yes, is it clear? Yes, sir. Okay, okay. Now let us do some questions. जो तुम simplify करने कह रहे थे, because हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इसलिए फिर मैंने कहा चलो एक साथ ही कर लेते हैं वो question, because it will be the same questions. So now we will do that only. So first is give the symbolic representation of the polynomial p equal to, so क्या polynomial लेंगे using gates. ठीक है? So gates के गेट से रिप्रेजेंट करना है इसे. So क्या आएगा इसका डायग्राम बताओ. So if you look at this, you have x3. So हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, राइट? एंड देयर इज, सो कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे? सो ये वाला प्लस से आ रहा है, सो और से आएगा, और ये वाला एंड से आ रहा है, राइट? यहाँ पे एंड और उसका कॉम्प्लीमेंट. सो ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, और उनका और हो जाएगा, राइट? सो क्योंकि प्लस बीच में है, सो इसको प्लस कर दो. Let us just draw it. ठीक है? सो ये तो प्लस हो गया. सो x3 हमारा इधर आ रहा है. So this is our x3. अब x2, x1 और x2 के लिए हमारे पास बीच में एक एंड गेट है, सो उसको हम यहाँ पे एंड गेट बना लेंगे.
इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। फाइन, और यहाँ पे हमारे दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, एक x1 एक ठीक है। इज इट फाइन? और यहाँ पे ये क्योंकि प्लस आ रहा है, सो दिस एंड दिस इज योर आउटपुट। फाइन, सो दिस इज योर x1 या a1, सॉरी, क्योंकि a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट, a1 a2 a3। सो अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे नाउ वी वांट इज x1 डैश और x2 फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। सो x1 डैश चाहिए, सो इसको तो हमें ये डॉट करना पड़ेगा एंड दिस इज एज इट इज, और फिर क्योंकि आउटपुट हमें कॉम्प्लीमेंट में चाहिए तो ये हो जाएगा एंड देन ये प्लस, और ये काम बन गया अपना। सो दिस इज योर a1 डैश a2 डैश प्लस a3, राइट? Is it fine? Yes. Yes, sir. So this is how you can draw it. So this is your answer also. जो अच्छे से फिगर है, so this is your same diagram. ठीक है, P bar A1 A2 A3. Now let us take the next question. Find, simplify the represent the given symbolic diagram by a simple diagram. ठीक है, so ये हमें basically we have to simplify it. So first we have to find the corresponding polynomial to this circuit. So polynomial क्या होगा? So corresponding polynomial to the given symbolic diagram is, yes, क्या होगा symbolic diagram? P इक्वल टू क्या आएगा अपना यहाँ पे बताओ। So पहले ये देखो, ये वाला गेट है सबसे पहले, राइट? तो ये व्हाट इज दिस गेट? NAND gate. It's an AND gate. हाँ, इसका वो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा इसका? A1 A2 dash. यहाँ पे अपने पास आउटपुट क्या आ रहा है? A1 A2 का होल कॉम्प्लीमेंट, राइट? या x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट, x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट। सो ये यहाँ पे आ रहा है अपने स्टेप पे। नाउ कम टू दिस स्टेप। अब जो है नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? ये वाला है। इस पे क्या आ रहा है अपने पास? यहाँ पे क्या आ रहा है स्टेप पे? A1 A2 Yes. dash plus 8. Sorry, x1 x2 So- dash plus x3. नहीं, प्लस नहीं है, वो ही आएगा, कैप ही आएगा ना। दिस इज एंड गेट ओनली, ठीक है? सो दिस इज योर x3। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा अपने पास स्टेप पे? Plus A4. Sorry, x4. प्लस x4, ठीक है? सो ये वाला तो पूरा हो गया चेन, राइट? नाउ कम टू दिस चेन। सो ये अलग चेन है क्योंकि ये इस पे आ रहा है। सो पुट हियर नाउ बिकॉज दिस इज एंड, सो यहाँ पे जो आएगा वो इसी का आएगा। सो यू कैन पुट मल्टीप्लिकेशन हियर। नाउ कम टू दिस।
सो ये वाला क्या दे रहा है हमें, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, बताओ इस पॉइंट पे। x1 x2 x1 देखो ये x2 x1 x2 नहीं आ रहा, अच्छा x1 है, हाँ दिस इज x1 and this one is x2, so you are getting x1 x2. okay, what you are getting at this point, so ये कौन सी चेन आ रही है, a3 and a4, so you are getting x1 x2 plus x3 x4 नहीं यहाँ पे दो ही आ रहे हैं ना, ये कितने, दो ही तो आ रहे हैं यहाँ पे, देखो you are getting तो this chain and you are getting this chain, x3 x4 एक का कॉम्प्लीमेंट है x3 डैश, ठीक है, you are getting x3 डैश x4 राइट। अब फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि प्लस हो रहा है ये और है, सो दिस इज गेटिंग प्लस, और यहाँ पे एंड है, सो दिस फाइन। इज इट फाइन? Yes. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू, इसको डिवाइड करना पड़ता है हमें। सो एक चेन पूरी ये थी, सो एक चेन ले ली और दूसरी चेन ये थी, और उनको हमने फिर एक कैप से कर दिया। सो दिस इज आवर डिजायर्ड पॉलिनोमियल। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सो ठीक है, we are getting the same answer. ठीक है, so this is the same answer, x1 x2 dash x3 plus x4. fine, now we have to simplify it, so we have to find the function table for this. ठीक है, because हमें simplify करना है, so we have to find the function table for this. So function table for p bar b a1 a2 a3 a4. ठीक है, so हमारे पास ये टेबल बनाना है हमें। We have to make it till 8. Okay, so this, let us put the values now. So this is your a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 a4 p bar b a1 a2 a3 a4 p bar b a1 a2 a3 a4. so इसमें क्या आ जाएगा, 0 0 0 0, right, 0 0. Now come to this tables, 1 0 0.
Yes, now give me the values. मैं p यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ so that you can easily calculate. ठीक है, ये वाले ले लेते हैं. ठीक है, अब बताओ वैल्यूज क्या क्या आएंगे. पहले अगर सारे जीरो हैं तो क्या आएगा अपने पास. Zero. एक किसी को जीरो प्रूव कर दो. सो ये जीरो है एंड दिस इज जीरो, सो ओवरऑल जीरो, राइट. सो यू गेट जीरो. नाउ सेकंड, अगर सेकंड लोगे तो दिस इज वन, राइट. दिस वैल्यू इज वन, सो यू हैव टू कम टू दिस. सो इसमें ये क्योंकि x4 इज वन, सो ये पूरा वन आ रहा है, राइट. सो जिसमें x3, अगर यहाँ पे देखो x4 अगर जिसमें वन है, राइट, और x3 डैश हमारा जीरो है, तो इट विल कम आउट टू बी वन, राइट. अगर x4 इज वन, इफ x4 इज वन तो ये पूरी वैल्यू वन हो जाएगी. एंड इफ x3 डैश इज जीरो, तो x3 डैश x4 वन विल बिकम वन. सो जीरो वन जहाँ पे भी है वो सारे अपने वन होंगे. सो जीरो वन जहाँ पे भी है वो सारा वन होगा. ठीक है, जीरो वन जहाँ पे भी आएगा, बाकी कुछ भी वैल्यूज हो. इज इट फाइन? Yes, sir. ओके, सो जीरो वन वाला हमने ले लिया. अब मतलब कि अब ये अगर x4 अभी भी वन है हमारा, और ये वाला अब ये तो क्योंकि x3 डैश, तो अब हम वो लेंगे वन वाले लेंगे. ठीक है, सो x3 अब ये जो है अपना x1 x2 क्या होना चाहिए, दिस शुड बी वन. ठीक है, सो फिर ओवरऑल वन आ जाएगा. तो जहाँ पे x1 वन है और वो भी वन 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 है, ये दोनों भी वन वन है, x4 वन वन है और ये दोनों वन है, तो वो वाला केस देखना है हमें. सो एक तो ये वाला हो गया, राइट. दिस वन विल गिव यू वन, और कोई नहीं देगा. ठीक है, नाउ सो x4 वाले वन वाले सारे खत्म हो गए अपने पास ना, क्योंकि ये वाला बाकी सब में जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा जीरो हो जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, जहाँ पे x1 x2 जीरो है और x3 डैश x4 भी जीरो बन रहे हैं, तो ये वाला जीरो, और this one is zero. If you look at this, so this one is zero. इसको देखो, ये बहुत इजीली बता रहा है हमें. ठीक है ना, this one is zero. Then here if you look at this, so 1 0, और यहाँ पे क्या रहा है, so this one is also zero. 1 0 1 0, this is 0. 1 0 1 1, again 0. ठीक है, सो अब ये देखो 1 1, दिस इज 1 1, सो ये 1 हो गया. और इधर अब बस हमारे पास रिमेनिंग कौन सी ये तीन वैल्यूज रह गई हैं. सो नाउ ये तो 1 1 है, यहाँ पे वन इस पे आना है हमें. सो दिस इज 1 1 के कॉम्प्लीमेंट, तो ये जीरो हो गया. सो दिस प्रोडक्ट इज जीरो, x4 जीरो है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, राइट. और इसकी वैल्यू बताओ. सो 1 1, सो ये तो 1 हो गया. नाउ अगर इस पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, और इस पे डिपेंड का मतलब है कि 1 1 का कॉम्प्लीमेंट जीरो, सो दिस इज, तो हमारा क्या हो गया, p इज इक्वल टू, p इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, x1 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट, x3 कॉम्प्लीमेंट, x4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x1 कॉम्प्लीमेंट, x2, x3 कॉम्प्लीमेंट, x4, देन यहाँ पे
x1 x2 complement x3 complement x4, राइट? चेक करते रहना, मैं कहीं गलती ना कर दूं. Then you have this x1 x2 x3 complement x4 and then last में x1 x2 x3 x4. So you have these 5 min terms in this, right? Yes, sir. So now we have to further simplify it. So अब क्या करना है इसमें हमें? We can club. अब या तो दो चीजें हैं, या तो इसका तुम you can draw the Karnaugh diagram और you can do दूसरा क्या कर सकते हो? दो मेथड करे ना हमने, एक कौन सा Cohen-Mikulski मेथड और दूसरा इज Karnaugh diagram. So let us first apply the Cohen-Mikulski method. So we will now simplify. We will now simplify P using Cohen-Mikulski method. So what was this method? बताओ इसमें क्या करना होगा हमें? Sir, 0 0 0 1. We have to write like this. ये हमें टेबल बनानी होगी, राइट? विद वो, so सबसे पहले कम जीरो किसमें है? वो कम वन, सबसे कम वन किसमें है? इस वाले में, राइट? So this is the first table. So 0 0 0 1 and then इसमें दो वन है, इसमें भी दो वन है, ठीक है? So अब ये लाइन so 0 1 0 1 and 0 sorry 1 1 0 0 1. So ये दो वाले हो गए and then you have this three ones 1 1 0 1 और फिर ये 4 वाला. Yes. Up next. So this is your 1 2 3 4 5. 1 किसके साथ कंपैटिबल है यहाँ पे? 1 2 and 1 3 both. 1 2 और 1 3 दोनों के साथ, राइट? सो 1 2 से क्या आएगा तुम्हारे पास? सेकंड पोजीशन पे डैश एंड 1 3 से कौन से पे? फर्स्ट पोजीशन पे डैश, राइट? तो तीनों यूज हो गए हमारे. सो टिक लगा दो तीनों को, क्योंकि दीज आर नॉट प्राइम इम्प्लीकेंट्स इस केस में, राइट? सो ऑल थ्री आर यूज, सो दीज आर नॉट प्राइम इम्प्लीकेंट्स. नाउ कम टू सेकंड. सो 2 इसके साथ किसके साथ है? 2 is 2 compatible 4 with and 3 4. 2 is compatible with 4 and 3 is also compatible with 4. So यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे? कौन से पोजीशन पे आ रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे, राइट? एंड इसमें कौन से पोजीशन पे आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे. ओके. नाउ व्हाट अबाउट दिस? 4 and 5 again they are compatible. Yes. Yes, sir. Yes. कौन से पोजीशन पे आएगा? इसमें थर्ड पोजीशन पे. This is used, all are used. कोई भी प्राइम इम्प्लीकेंट इस स्टेज पे हमें मिला नहीं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप. Let me just take this table there. Yes. Now अब बताओ
what we will get? So again यहाँ पे 1 2 ये इसको हमें इससे देखना है, so कौन से वाले से compatible है? 3 4 ये वाला 1 2 is compatible with 3 4, right? Because dash is matching और ये वाली position पे there is a change, so you get dash dash 0 1, right? And what about this 1 3? These two. 1 3 2 4. So this is used 1 3 2 4. So then again we get same. Dash dash 0 1. Yes. So these two are also used here. अब इसमें देखो 2 4 3 5 कोई भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसका डैश अलग है, so not compatible. So this is your first prime implicant. ठीक है? So A is your first prime implicant that you have got. Now what about this? अब यहाँ पे तो और कुछ है ही नहीं, so ये भी अपना next step में this is your second prime implicant B. So P is equal to क्या हो गया हमारा by Quine-Miquelis की मेथड. अच्छा पहले टेबल बनानी पड़ेगी हमें. So we have got this. Let us draw the table. So हमारे पास 2 प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं और 5 होते हैं हमारे पास, राइट? कौन कौन से थे अपने पास इधर? जीरो 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 वन. थोड़ा टेबल नीचे कर लेते हैं. So 0 0 0 1. Then next क्या था? 0 1 0 1 1 0 0 1. 0 1 0 1 1 0 0 1, and then we had 1 1 0 1 or 4 times 1 1 0 1 and 4 times 1, right? और इधर हमारे पास 2 प्राइम इम्प्लिकेंट्स हैं, एक डैश डैश 0 1 डैश डैश 0 1 और एक 1 1 डैश 1, राइट? This was our B, this was our A. So these two are prime implicants. Now अब क्या होगा? ये किससे मैच हो रहा है? किस किस को कवर कर रहा है ये? Sir, All of them all except the 4 first one. except Yes. last one. सबको. और ये वाला Last two. Last 2. लास्ट टू. सो इसका भी एक अलग रो है, इसका भी एक अलग कॉलम है और पूरे कवर हो रहे हैं. सो दीज टू आर बोथ इंपॉर्टेंट प्राइम इम्प्लिकेंट्स, राइट? सो देन P is equal to, so P is equal to क्या हो जाएगा हमारे पास? x3 डैश x4 प्लस x1 x2 x4. ठीक है? So this is the prime implicant. Is it fine? So now we have to draw its symbolic representation. So the simplified symbolic representation is the simplified symbolic representation is given by क्या आ जाएगा? So you have 4 variables, so 4 ये ले लो. 1 1 2 3 and 4. So 4 इनपुट है. फिर क्या है अपने पास? 2 गेट्स आ रहे हैं,
x3 डैश x4 का और एक x1 x2 x4, राइट। सो दो एंड गेट बनाने हमें। सो एक तो यहाँ पे बना लेंगे हम, यस, और दूसरा इसका भी एंड बनेगा, सो इसको यहाँ पे बना लेते हैं। सो ये x3 x डैश तो इससे सीधे हो जाएंगे, राइट। और इधर x1 x2 इससे हो ही रहे हैं, x1 x2। अब ये x4 जो है हमें इसमें लाना है, ठीक है। सो x4 को वी कैन टेक इट लाइक दिस, ठीक है। So this is your x1, this is your x2, this is your x3, this is your x4। अब x3 का डैश आ रहा है, so we input as a डैश आ रहा है, so we will take it input। और अब ये दोनों को प्लस से करना है, ठीक है। So now this is the desired diagram, right? Is it right? Yes. Yes, sir. Okay, so this is how you can make it. So कितना सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास, कितने यहाँ पे हमने we use so many gates, right? If you see this, we use 1 2 3 4 5 6 7, so we use 7 gates, but now we just need to use 3 gates, right? So इसलिए this Boolean algebra is very important in this switching circuits, right? Because it simplifies our circuits in a very efficient way. So कितना simplified हो गया, right? Now let us simplify this again using our Karnoff diagram also, ठीक है। Let us do it using Karnoff diagram, yes। उससे देखते हैं क्या होता है। So let me first give you the answer for this, जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने x1 x2 x3 लिख दिया, यहाँ पे a1 a2 a3 लिखना है, ठीक है। So write a1 a2 a3 a4, fine, and answer is this, ठीक है। So this is your answer, so same आ रहा है हमारा, right? Now let us draw this again, let us simplify p using Karnoff diagram। How much time we have? Okay, चलो जल्दी से कर लेते हैं, 5 minutes are there। So let us simplify our p using Karnoff diagram, ठीक है। तो फंक्शन टेबल हमने बना ही लिया था, p हमारा जो है ये आ गया था, so p was this, right? Alternative way, so from the function table we have p in dn form given by, so p was given by this, ठीक है। so p is this, now we have to draw its Karnoff diagram। so Karnoff diagram के लिए क्या करते हैं, 4 वेरिएबल के लिए हमारे पास जो ब्लॉक है उसको लेना होगा हमें, राइट।
So we have to take the SQ, standard square. So this is our standard square. So now let us represent. So कौन सा x1 x2 x3 dash x4 कहाँ पे आएगा अपना, ये कौन सा ब्लॉक शेड करें हम. So x1 dash b1 complement, x2 dash b2 complement, x3 dash this और b4 dash. So ये वाला, right? Sorry, last is b4. So this one. Yes. अब next x1 dash x2 x3 dash. So ये वाले में आ गए x2 x1 dash x2 ये वाला हो गया, ये चारों. एंड देन x3 dash अपना ये वाला हो गया और x4. So this one. Yes. नेक्स्ट x1 x2 dash. So x1 x2 dash कहाँ पे आ गए हम, इस ब्लॉक में आ गए. इस ब्लॉक में फिर x3 dash तो इस वाले में आ गए और x3 dash फिर क्या है x4. So we come to this block, right? Now x1 x2 dash, नहीं गलत कर दिया ना, सही करा है. सही है. x1 x2 dash x3 dash x4, right? Now come to this x1 x2. So again this block x3 dash. So ये वाला हो गया और x4 ये वाला. And now x1 x2 x3 x4. So this ये x1 x2 ये हो गया and then x3 ये वाला हो गया and x4 ये वाला हो गया. Yes. So ये 5 blocks हो गए. Now we will simplify it. So हमारे पास दो के पेयर्स बना पाएंगे, right? Yes. So एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर. इनफैक्ट ये दोनों जो है हमारे एक ही पेयर हैं, ये दोनों जो हैं, क्योंकि ये इस अगर टेबल इसको घुमा दो तो ये चारों एक में आ जाएंगे. यस, इफ यू सी इट, ये क्योंकि इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं बीच में, तो ये चारों अपने एक साथ हैं. जो कॉर्नर वाले होते हैं इनको हम क्लब कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस टू विल बी लाइक दिस. इसको हम इस तरह से ले सकते हैं बेसिकली ये. ठीक है. तो ये चारों के लिए कौन सा आएगा? तो हमारे पास दो यहाँ पे मिनिमल फॉर्म्स आए हैं. ठीक है, 3 नहीं लेंगे, 2 मिनिमल फॉर्म्स लेंगे. सो कौन कौन से? ये चारों गए. सो क्या आएगा अपना P? इन चारों को कौन सा रिप्रेजेंट करता है? x3 dash x4. यहाँ पे अगर इफ यू लुक एट दिस, सो इसमें एक तो कौन सा आ रहा है अपना, क्योंकि B2 B3 दोनों आ रहे हैं, B2 डैश दोनों आ रहे हैं. एंड देन यहाँ पे B4 और इधर B1 डैश भी आ गया, B1 भी आ गया. सो हमारे पास B3 डैश और B4 आ रहा है, राइट? सो P इज इक्वल टू, सो P इज इक्वल टू, इधर से हमारे पास आ गया x3 डैश x4. अब इस वाले को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? B1 B2 and B4. देखो B3 B डैश दोनों आ गए, बट बाकी ये एक एक आ रहे हैं. सो B x1 x2 x1 x2 एंड x4. सो कार्नोव डायग्राम इज मच सिंपलर मेथड, क्योंकि इसमें बस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना. अच्छा, ये याद रखना कि अगर इधर के मैच हो रहे हैं ये कॉर्नर वाले, तो एक तरह से ये वो इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि ये वो है, सर्कुलर है, कि ये इधर से इधर आके मैच हो रहा है. ठीक है, उस तरह से देख सकते हो इसे. ऊपर वाले इधर से मैच हो जाएंगे और इस साइड वाले इधर से मैच हो जाएंगे. ठीक है, इज इट फाइन? तो जो कॉर्नर वाले हैं, दिस 4 विल बी मैच्ड विद दिस, अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है. और ये these 4s विल बी मैच्ड विद these 4s अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गेट इट. तो ये हमारे पास आ गया अपने पास. क्योंकि इस डायग्राम को हम इस तरह से भी पुट कर सकते थे अगर हम चाहते, तो वी कुड हैव प्लेस्ड दिस डायग्राम लाइक दिस आल्सो, क्योंकि
ये तो वेरिएबल्स हम ही पुट कर रहे हैं ना, सो हम इसको हाफ, मतलब इसको इस तरह से ही पुट कर सकते थे कि इतना पोर्शन ले लिया और फिर इस वाले को उधर पेस्ट कर दिया, तो इसलिए ठीक है। सो ये वाले जो हैं 4 ब्लॉक इसके साथ मैच कर सकते हैं हमें अगर पॉसिबिलिटी होती है, एंड दीज 4 ब्लॉक्स वी कैन मैच विद दिस। So Karnaugh diagram is a simpler method than your this Cohen-McCluskey method, ठीक है। अगर कभी Cohen-McCluskey मेथड से करो भी कोई क्वेश्चन एंड देन इफ यू हैव टाइम देन मेक श्योर यू मैच द आंसर विद दिस Karnaugh diagram using Karnaugh diagram, ठीक है। इज इट फाइन? So this is how we can simplify any polynomial. So मतलब कोई भी, जैसे उस दिन हम स्विचिंग सर्किट कर रहे थे तो वो हम पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करके वी वुड हैव फाउंड इट्स फंक्शन टेबल, और फंक्शन टेबल निकाल के हम फिर उसको Cohen-McCluskey मेथड या Karnaugh डायग्राम किसी भी एक को यूज करके वी कुड हैव सिंप्लीफाइड इट। और Cohen-McCluskey से ज्यादा सिंपलर Karnaugh होता है, लेकिन Karnaugh में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि कौन से मैच कर रहे हैं। Cohen-McCluskey थोड़ा एरर कम होता है Cohen-McCluskey में, क्योंकि वहाँ पे सिंपल्स दिख रहा होता है। यहाँ पे क्योंकि चॉइसेस हमें बनानी होती हैं इनकी, सो अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम 2 के 3 चॉइसेस बना लेते, या एक 4 का और एक 2 का। क्योंकि हमें मिनिमम नंबर बनाने हैं तो हमें 4 का एक लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमें ये वाला लेना पड़ेगा और साथ में ये वाला, ठीक है। सो इस सर्कुलर की तरह काम करता है, ठीक है। So that's why we match it like this. Fine. So this is all we have today. Okay. किसी को कुछ पूछना है? Anyone wants to ask anything? Any questions from anyone? Okay, so as there are no questions, let us end this class. Okay. So bye everyone. Have a good day. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel, Online Learning, to stay updated and share with your friends. Happy learning through online learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.